کار یہاں آتے ہیں۔ مقامی نوجوانوں کو روزگار کا یہ خوبصورت ذریعہ ان کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے۔ حالانکہ انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے سیاحتی لحاظ سے یہ علاقے زیادہ پھلے پھولے نہیں۔ کسی بھی سیاحتی مقام تک پہنچنے کے لیے رابطہ سڑک کا صحیح حالت میں ہونا اور سیاحوں کو بنیادی سہولیات میں کمیونیکیشن کا نیٹ ورک، ٹوائلٹ، واش روم، ریسٹورنٹ، میڈیکل فیسلٹیز کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، جو بنی کے سرتھل، لوانگ، چترگلا میں جس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ بسولی بنی سڑک رابطہ ٹوٹا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ضلع کٹھوعہ کی یہ تینوں پہاڑی تحصیلیں بنی، بلاول اور بسولی قدرتی حسن کی کاریگری سے مالا مال، ہر کسی کو اپنی طرف راغب کرنے میں بے قرار رہتی ہیں۔ شدید برفباری سے یہ تینوں تحصیلیں ہیڈ کوارٹر سے کٹ جاتی ہیں۔ اننیسیسری پاور کٹس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو کئی طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہے، یہاں تک کہ کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ٹھپ رہتا ہے۔ لوگوں کی نقل و حرکت میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بلاور میں مچھیڑی، بدنوتا اور ناٹھی جیسے بے شمار گاؤں شدید برفباری کی وجہ سے مکمل طور پہ منقطع رہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں ملتی ہے، یہاں تک کہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہونے سے بیماروں اور خاص طور پہ حاملہ عورتوں کو کئی کلومیٹر چارپائی پہ اٹھا کر بلاور یا بسولی کے سب سینٹر میں لے جا کر علاج کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود برف کا نظارہ لینے کے لیے دور دور سے سیاح یہاں آتے ہیں، خوب مزہ لوٹتے ہیں۔ کٹھوعہ سے رمیش مراٹھا کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر سماجی بہبود، تعلیم، صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ یتو نے آج جموں میں لوئی بریل کی 217ویں یوم پیدائش کی تقریبات سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے لوئی بریل کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے بصارت سے محروم افراد کے لیے لمس کے ذریعے پڑھنے لکھنے کا نظام بریل سسٹم ایجاد کر کے دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو بااختیار بنایا۔ اس تقریب میں سماجی بہبود محکمے کے سیکریٹری بشیر احمد خان، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جموں رنجیت سنگھ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سمن ایک زمانے میں شہر سری نگر کے بیچوں بیچ متعدد آبی گزرگاہیں ہوا کرتی تھیں، جو نہ صرف آبی ٹرانسپورٹ کے لیے اہم گردانی جاتی بلکہ جن کا وجود ماحولیات کے کلی شیرازے کو توازن عطا کرتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آبگاہوں اور آبی گزرگاہوں کے رکھ رکھاؤ کی نسبت سے حکومت بے حس ہوتی گئی، جس کا منہ بولتا ثبوت ان کی موجودہ حیت ہے۔ ایک زمانے میں وسیع رقبے پر پھیلی صاف و شفاف پانی کا ذخیرہ یہ آبگاہیں آج ڈرینز کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری بے اعتنائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور کیا یہ میراث داستان پارینہ بن کے رہ جائے گی؟ ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو۔ سری نگر شہر سے گزرنے والی وہ تاریخی اور قدرتی ندیاں جو کبھی شہری زندگی کا لازمی حصہ ہوا کرتی تھی، آج شدید آلودگی اور سرکاری و عوامی غفلت کے باعث اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ دریائے جہلم کی معاون ندیاں، جنہیں مقامی زبان میں کل کہا جاتا ہے، کبھی صاف و شفاف پانی، خوبصورت مناظر اور روزمرہ استعمال کا ذریعہ تھی، تاہم اب یہ ندیاں کچرے، پلاسٹک اور گھریلو فضلے سے بھر کر معدومیت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ ٹوٹ کل، سنر کل، براری نمبل، باب ڈیم اور گگری بل سمیت کئی اہم آبی گزرگاہیں نہ صرف اپنی قدرتی روانی کھو چکی ہیں، بلکہ بیشتر مقامات پر یہ گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ان ندیوں کے کنارے رہنے والے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک وقت تھا جب بچے ان ندیوں میں نہایا کرتے تھے اور خواتین ان کے گھاٹوں پر کپڑے اور برتن دھوتی تھی، مگر آج یہ مناظر ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سنر کل کے رہائشیوں نے بتایا کہ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد حکومت نے اس ندی میں ڈریجنگ کا عمل شروع کیا تھا تاکہ پانی کی روانی بحال ہو سکے، تاہم یہ عمل کچھ عرصے بعد بند کر دیا گیا اور اس کے بعد برسوں تک کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس ندی کی نہ صفائی ہوئی اور نہ ہی اسے محفوظ بنانے کے لیے کوئی مستقل منصوبہ بنایا گیا۔ ایک مقامی شہری نے بتایا کہ یہ ندی کبھی ہماری زندگی کا حصہ تھی، آج یہ کچرا ڈالنے کی جگہ بن گئی ہے۔ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ندی مر چکی ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں ان ندیوں کا پانی پینے کے قابل تھا، مگر آج یہ پانی نہ صرف گندا بلکہ انسانی صحت کے لیے
खतरनाक हो चुका है। घरेलू फुजला, प्लास्टिक और दीगर आलूदा मवाद इन आबी गुजरगाहों में डाला जा रहा है, जिससे माहौलियाती तवाजुन भी मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीनों और माहौलियाती माहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन नदियों की फौरी सफाई, बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे और तवील मुद्दती मंसूबा तैयार किया जाए। इनका कहना है कि ये आबी गुजरगाहें कश्मीर के कुदरती विरसे का एक अहम हिस्सा है और अगर बर वक्त इक़दामात न किए गए तो आने वाली नस्लें इन नदियों को सिर्फ तारीख और कहानियों में ही देख पाएंगे। इमरान नाइको की रिपोर्ट आपने सुनी। हुक्काम ने आज मुगल रोड को गाड़ियों की महदूद आमद-रफ्त के लिए दोबारा खोलने का ऐलान किया है, जिसके तहत मखसूस औकात में सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स को ही चलने की इजाज़त होगी। एक एडवाइजरी के मुताबिक मुगल रोड सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहा करेगा। यह फैसला ज़मीनी सतह पर मौसम और सड़क की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद लिया गया। वाज़ेह है कि बड़ी गाड़ियों और मुसाफिर बसों को मुगल रोड पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। गौरतलब है कि सिर्फ ऐसी छोटी गाड़ियों को मुगल रोड पर चलने की इजाज़त होगी जो हिफाजती उसूलों और सर्द मौसम के तकाज़ों पर पूरा उतरती हों। इधर मरकज़ी वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहें नितिन गडकरी ने शिमाली कश्मीर में दरीना कांसपुरा फ्लाईओवर और पटन मार्केट बाईपास के ताख़ीर का शिकार कामों पर कार्रवाई का यकीन दिलाया है। यह यकीन दहानी रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की जानिब से पेश की गई रिप्रेजेंटेशन के बाद कराई गई। एक सरकारी मकतूब में मरकज़ी वज़ीर ने तस्दीक की कि उन्हें रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद का वो मकतूब मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने दोनों अहम बुनियादी ढांचों के मंसूबों में तवील ताख़ीर होने पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। दुनियासना किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि मरकज़ी वज़ीर बराए बिजली मनोहर लाल खट्टर आज किश्तवाड़ के दौरे पर पहुंचे, जहां वो ज़ेर तामीर बिजली प्रोजेक्टों का जायज़ा लेंगे। बताया जाता है कि हेलीपैड पर उतरने के फ़ौरन बाद वो सीधे ज़ेर तामीर 850 मेगावाट रैटले प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए और उनके हालात का जायज़ा लेने के लिए दराबशाला रवाना हुए और अभी तक वो इसी प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात दरियाफ्त कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ रात का क़याम किश्तवाड़ में करेंगे और कल अपनी दीगर सरगर्मियों के अलावा वो कई वफूद से मुलाक़ी होंगे और डूल जाकर प्रोजेक्ट्स का जायज़ा भी लेंगे। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, रजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम्स और अनऑथराइज्ड फाइनेंस कंपनीज कभी भी किसी को भी निशाना बना लेती हैं, लेकिन शुक्र है कि सचेत है। सचेत? पर ये क्या है? सचेत RBI, सेबी और IRDAI का ज्वाइंट पोर्टल है जहां आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी, NBFC, चिट फंड या स्कीम की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और अपने शहर में एक्टिव फ्रॉडुलेंट ऑपरेटर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी पैसे इन्वेस्ट करने को बोले तो पहले मैं सचेत पर चेक कर सकती हूँ। बिल्कुल, बस पोर्टल पर जाएं, नाम सर्च करें और
और तुरंत पता लग जाता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है या फेक। और तो और आप सस्पिशियस एक्टिविटी की ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। Investment Safe Future Set. Visit sachet.rbi.org.in. Issued in public interest by Directorate of Information and Public Relations, Government of Jammu and Kashmir. सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। समीनी मोहतरम, हम आपको बता दें कि आज रात 9 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद पेशन गोइयां। समीर किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद ज़रू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज उधमपुर ज़िले में उस वक्त एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक खातून अपने बेटे की मौत की खबर का सदमा बर्दाश्त न कर पाई और जान बहक हो गई। बताया जाता है कि मज़कूरा खातून के बेटे की मौत जंगल में दरख्त से गिरने के बाइस हुई थी। हुक्काम के मुताबिक इरशाद अहमद लकड़ी लाने के लिए करीबी जंगल गया था, जहां वो हादसाती तौर पर दरख्त से गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। उसकी मौत की खबर सुनते ही उसकी वालिदा जैतून बेगम सदमे से चल बसीं। इधर SDH उड़ी में आज एक नौज़ायदा बच्चे की मौत के बाद लवाहकीन ने अस्पताल इंतज़ामिया बिलखुसूस डॉक्टरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। उनके मुताबिक बच्चे को आज सुबह नाजुक हालत में SDH उड़ी लाया गया था, लेकिन बकौल उनके डॉक्टरों ने उसका मुनासिब मुआयना नहीं किया और इलाज कराने के बजाय उसे एक निजी अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। कुछ वक्त के बाद बच्चे की मौत वाक़ हुई। सबिन ज़िले गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में लोग बिजली और पीने के पानी की कमियाबी के बाइस खासे परेशान पाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में रहीम रिजवान की इत्तला है कि ज़िले में दर्जनों ऐसे देहात हैं जहाँ के लिए महकमा बिजली ने अपना कोई सप्लाई शेड्यूल नहीं बना रखा है, और अगर है भी तो वो ताक पे उठा रखा है और सार्फिन को बिजली अहलकारों की मनमर्जी का ताबे बनाया गया है। इस सूरत हाल का खमियाजा न सिर्फ तलबा व तालिबात और घरेलू सनतों से वाबस्ता अफराद बल्कि दुकानदारों और तिजारती इदारों को भी झेलना पड़ रहा है। दरअसल ज़िला गांधरबल के मुताद्दिद इलाकों में पीने के पानी की फराहमी अजहद नाकिस बताई जाती है। मुतल्लिका सार्फिन को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है और यूं जल शक्ति महकमे के जल जीवन मिशन की कलई खुल जाती है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ खुद रहीम रिजवान। गांधरबल जिला के दर्जनों इलाकों के सार्फिन बिजली की बेवकत कटौती और आवाजाही से सर्दी के इन अय्याम में गुनागू मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जिला के छतरगुल, बाबा ऋषि, आरी, गोरी, पोरा, मनगाम, तनर, लरी प्रांग, वुसन, बेला वुसन, मरगुंड, सत्रिना, सरफराव, कचपत्री, सुंबल, बाला, बनीबाग, गुंड, कुलन, हरिपोरा, अरहमा, बोनीजिल, अंदरवन, यार मुकाम और दीगर दर्जनों इलाकों से शहरबीन को मुसलसल शिकायत मासूल हो रही हैं कि ये इलाके शाम होते ही गुप अंधेरे में डूब जाते हैं और इन इलाकों में गैर एलानिया कटौती की जाती है, जिससे सारिफीन की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। मकामी लोगों के बकौल उन्हें सिर्फ 15 मिनट बिजली फराहम की जाती है, इसके बाद 1-2 घंटे बिजली गायब रहती है और ये आवाजाही का सिलसिला गुज़श्ता कई दिनों से जारी है, जिससे तालिब इल्म की पढ़ाई पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इलावा अजी तिजारत पेशा अफराद का कानून, सरकारी और गैर सरकारी इदारों का काम काज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस पर सितम ज़रीफी तो यह है कि एक तो सारिफीन को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जाती है और दूसरा उन्हें बारी रकूमत बतौरी बिजली फीस अदा करना पड़ता है। बिजली फीस को लेकर सब डिवीजन कंगन के दर्जनों इलाकों के लोगों ने गुज़श्ता दिनों के दौरान कई बार महकमा और मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले सार्फिन का मुतालबा है कि वो बारी रकूमत बतौर बिजली फीस अदा करने से कासिर हैं।
लिहाजा मौजूदा सरकार खासकर वजीर आला उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि उन्होंने बिजली फीस माफ कराने के जो वादे अवाम के साथ किए थे उन्हें निभाया जाए और सार्फिन को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। दरियासना, बोनीजुल, अरहामा, अंदरवन, ब्रह्मशन और मनेखार खोडनहार के मकामात पर 4 फिल्ट्रेशन प्लांट की मौजूदगी के बाइस अरहामा, बोनीजुल, अंदरवन, चकपोरा, डांगरपोरा, हारीपोरा, छानहार, गुडलीबाग, जरखन, वुसन, बेला वुसन, पेट वुसन और दीगर मुल्हिका इलाके पीने के साफ पानी से महरूम हैं। मकामी लोगों के बकौल वो सर्दी के इन अयाम में आसपास के नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल में लाते हैं, जबकि बेशतर इलाकों के लोग दीगर इलाकों में मौजूद कुदरती चश्मों का पानी मटकों में लाते हैं। आए रोज लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है और सुबह शाम इन इलाकों से पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि बोनीजुल, ब्रह्मशन, अंदरवन और दीगर जेर तामीर फिल्ट्रेशन प्लांटों का तामीरी काम पाई तकमील तक पहुंचाने में महकमा जल शक्ति गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, जिससे हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि मुतासिरा इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व कल 5 जनवरी को अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। वादी में गुरु पर्व के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनेवारी श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जबकि वादी के दीगर गुरुद्वारों में भी कल सुबह से ही तकरीबात का इनेकाद होगा। याद रहे कि गुरु पर्व के सिलसिले में पिछले कई दिनों से मुसलसल प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इधर गुरु पर्व के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के आवाम बिलखुसूस सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार पूरे जम्मू कश्मीर के लिए दायमी अमन आश्ती की नवीद ले आए। दरियासना काबीनी वज़रा सकीना मसूद इत्तू, जावेद राना और जावेद अहमद डार ने भी गुरु पर्व के मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की है कि जम्मू कश्मीर में भाईचारे और फिरकावाराना हम आहंगी की मशल हमेशा रोशन रहे। और अब रुख करते हैं पुलवामा जिले का, जहां से फोन लाइन पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शबीर भट्ट। ठिठुरती सर्दी के इन अय्याम में जहां अहलियानी वादी को पहले ही मुश्किलात दरपेश है, वहीं बाजारों में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कुव्वत खरीद ही खत्म कर दी है। दीगर अजला की तरह जनूबी जिला पुलवामा के चारों असेंबली हलकों पुलवामा, राजपुरा, पांपोर और त्राल से शहरवीन को मुसलसल ये शिकायत मौसूल हो रही है कि जिला के बाजारों में सब्जी, रेडीमेड आइटम्स, हार्डवेयर आइटम्स और राशन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ने आम लोगों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। अवामी हलकों के मुताबिक सरमा के दौरान जहां वादी में सूखी सब्जियों, दालों, मछलियों और दीगर अशिया की खपत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वहीं इन अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे ने मुतवसत तबके का जीना महाल कर दिया है, जबकि खट्टी इफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद का हाल पहले ही बेहाल हो चुका है। अवामी हलकों के मुताबिक माजी में जिला के बाजारों में मुसलसल चेकिंग सुकार नजर आते थे, लेकिन अब वो रिवायत बरकरार नहीं रही, जिसकी वजह से नाअकबत अंदेश दुकानदारों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो सार्फिन को 2-2 हाथों से लूट रहे हैं। लोगों के मुताबिक कस्बा जात में अगर बढ़ती हुई महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा है तो फिर दूर दराज इलाकाजात सतोरा, नारस्तान, बटनूर, संगरवनी और दीगर इलाकों में महंगाई का आलम क्या होगा। सूरजहाल का एक और पहलू ये भी है कि जिला के मुख्तलिफ बाजारों में सेल के नाम पर खरीदारों के साथ खेल हो रहा है, तहम मुतल्लिका इदारे बदस्तूर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हालांकि जिला भर में एक म्युनिसिपल काउंसिल और 4 म्युनिसिपल कमेटियां तो मौजूद हैं, लेकिन ये इदारे भी बाजारों में बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने में ज़बानी जमा खर्च करने से ही काम ले रहे हैं। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने आज शाम शहरबीन को बताया कि पूरे जिले में कल से ही मार्केट चेकिंग में सूरत लाई जाएगी। पुलवामा से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर ज़राअत रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की। इस मौके पर जीएम शाहीन ने वज़ीर मौसूफ की दानिश में जम्मू कश्मीर के ज़राई सेक्टर को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों की आगाही दिलाई और उनसे इस्तदा की कि काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिए दूररस इक़दाम किए जाएं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्तव्य ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। प्रोग्राम का ये हिस्सा